خاص اس خبر کے ساتھ کہ جھوٹی خبروں کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبے بھر میں حتیٰ عزت قانون کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اطلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی جھوٹی خبروں پر یہ فیصلے کا اطلاق ہوگا، جبکہ حتیٰ عزت بل 2024 اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ تو اہم فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے جھوٹی خبروں کے تدارک کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور صوبہ بھر میں حتیٰ عزت قانون کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ اطلاق پرنٹ اور الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والی جھوٹی خبروں پر ہوگا۔ حتیٰ عزت بل 2024 اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسانوں سے گندم کی خریداری کے معاملے پر غفلت برتنے پر 2 پاسکو افسران کو معطل کرنے کا حکم۔ پاسکو کو 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف اور مؤثر طریقے سے خریداری کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت گندم کی خریداری پروگرام کے حوالے سے اجلاس۔ گندم خریداری کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایات پر عمل درآمد نہ ہونے پر وزیر اعظم برہم۔ پاسکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور جنرل مینیجر پروکیورمنٹ کو معطل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گندم کی خریداری کے عمل کے لیے موبائل ایپلیکیشن تیار کیوں نہ کرائی گئی۔ انہوں نے گندم خریداری کے لیے موبائل فون ایپلیکیشن تیار کرنے کی تاکید کی اور پاسکو کے سٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ گندم کی خریداری کا عمل شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، کسان کے معاشی تحفظ کے لیے اجناس کی انشورنس کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے پاسکو کو 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف اور مؤثر طریقے سے خریداری کی ہدایت بھی کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے پاسکو مراکز اور افسران کا انتخاب کیا جائے گا اور ان کی حکومتی سطح پر پذیرائی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کا گرما گرم اجلاس، اپوزیشن کے ساتھ حکومتی ارکان بھی گندم خریداری نہ ہونے پر برس پڑے، جبکہ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے واضح کر دیا کہ حالات ایسے ہیں کہ گندم خریداری نہیں کی جا سکتی، تاہم پنجاب حکومت کسان کو ریلیف کارڈ دے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ گندم خریداری نہ ہونے پر گرما گرمی، اپوزیشن کے ساتھ حکومتی ارکان بھی برس پڑے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا حالات ایسے ہیں کہ گندم خریدی نہیں جا سکتی۔ کسانوں نے 90% گندم فروخت کر دی ہے۔ جب کسان کے پاس گندم نہیں تو مڈل مین کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربوں روپے خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ جو کسان چھوٹا جس کے لیے پالیسی ہم لے کے آئے تھے 6 ایکڑ پہ 6 بیگ، وہ تو اپنی جو گندم ہے وہ تو تقریباً اس وقت 90% پلس جو ہے اس کی ہارویسٹنگ ہو چکی ہے، وہ تو بیچ چکا۔ تو پھر ہم یہ پالیسی اربوں روپے اس کو دے دیں جس کو ہم مڈل مین یا جس کو ہم ایک بہت بڑا ولن پورٹری کرتے ہیں اس کو دے دیں۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد نے ایوان سے اظہار خیال میں کہا کہ پنجاب حکومت نے گندم کی خریداری نہ کر کے کسانوں کا معاشی قتل کیا۔ گندم امپورٹ کر کے خزانے کو 11 ارب 37 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگایا گیا۔ 13 جولائی 2023 سے اب تک گندم سکینڈل پر تحقیقات کیوں نہیں ہو سکی؟ انہوں نے وہ والی گندم ملوں کو بیچی ہے جو یوکرائن والی گندم ان کے پاس آئی ہے۔ انہوں نے تقریباً 1 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے ملک کو۔ کسان کو ہم قتل کر دیں، اس کو ہم مار دیں اور مار کے اس کی لاش کو ہم سمندر میں پھینک دیں کسانوں کی، اور اس کے بعد کہیں کہ آگے چلو جی ہن تہاڈا کی بننا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت پنجاب نے حتیٰ عزت کے حوالے سے نیا قانون بھی پیش کیا، جسے اسپیکر نے خصوصی کمیٹی کے سپرد کر دیا، جبکہ اجلاس بدھ کے روز 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ گندم سکینڈل کی تحقیقات نیب سے کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اور درخواست میں عدالت سے نیب کو گندم کے میگا سکینڈل کی تحقیقات کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ گندم سکینڈل کی تحقیقات نیب سے کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر شہری مشکور حسین نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم، وزیرہ، پرنسپل سیکرٹری، سابق نگران وزیر اعظم، نیب اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے پہلے 2 ماہ 7.78 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی گئی۔ حکومتی سطح پر بنائی گئی کمیٹی شفاف تحقیقات نہیں کر سکتی۔ حکومت خود گندم سکینڈل کا حصہ ہے، میرٹ پر تحقیقات
बगावत मुमकिन ही नहीं। दरखास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत नैब को गंदम के मेगा स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म दे, गंदम स्कैंडल के मुहर्रिकात का तयन करके रकम वसूल करवाई जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत ये रकम कौमी खजाने में जमा करवाने का भी हुक्म दे। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत छोड़ दी और इस्तीफा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को इरसाल कर दिया है। 28 मई को जनरल काउंसिल इजलास में नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखें। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत में बड़ी पेशरफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी की सदारत छोड़ दी, इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने 11 मई को अरसाल करदा इस्तीफे में कहा कि 2017 में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से नाहक वजारत उज़्मा और पार्टी सदारत छीनी गई। हमारी क़यादत ने मुश्किलात का जुर्रत से मुकाबला किया। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने सदारत की इमानत मुझे सौंपी थी, पूरी दयानतदारी से फर्ज अदा करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे कायद की बरियत उनके बावकार किरदार और कौम की खिदमत के बेदाग माजी की गवाही है। मैं पार्टी सदारत की इमानत अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ ताकि वो मुल्क और जमात की रहनुमाई फरमाए। 2024 के आम इंतखाबात के बाद जमात ने मुझे वजीर आज़म बनाया। अपने महबूब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से गैर मुतज़लज़ल वफादारी का अहद दोहराता हूँ। वाज़िया रहे कि मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास 28 मई को मुनक्किद होगा, जिसमें नवाज शरीफ को दोबारा सदर मुंतखब किया जाएगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इंडस्ट्री से इजलास हुआ। पंजाब का पहला प्लग एंड प्ले तर्ज पर गारमेंट सिटी कायम करने का फैसला किया गया है। तो वज़ीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम की गई है, जबकि पहले प्लग एंड प्ले गारमेंट सिटी में तमाम सहूलियात मैसर होंगी। गारमेंट सिटी में बड़ी इंडस्ट्री से इज़हार दिलचस्पी करने की हिदायत की गई है। और ब्रीफिंग में कहा गया है कि गारमेंट सिटी में डाइनिंग और दीगर मुतल्लिका यूनिट कायम होंगे, जबकि ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी सिस्टम भी कायम किए जाएंगे। इजलास में सेनेटर परवेज़ रशीद, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और सूबाई वज़ीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन, जबकि MPA सानिया आशिक और चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन PND और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अदलिया एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा। हाई कोर्ट ने पहले ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को रोके रखा और अरबों का नुकसान हुआ। अब किसी और केस में इलेक्ट्रिक बाइक तलबा को ना देने का कह दिया है। जब बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम दिया गया तब अदालत क्यों हरकत में नहीं आई। रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। लिटन रोड पर वाक़या गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज बराए खवातीन में चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 16 अजला में टेक्निकल प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, जिनमें 1000 बच्चे मुख्तलिफ कोर्सेज करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, इस सब को हमने इस सब के कोर्सेज हमने शुरू किए हैं। बच्चे जो हैं वो इसमें 4 बैचेस में ट्रेन होंगे और 100% फ्री है। अल्लाह का शुक्र है, कोई पैसे बच्चों को देने नहीं पड़ेंगे। वज़ीर आला ने हाई कोर्ट को पैगाम देते हुए कहा कि अदलिया एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा। अदलिया ने किसी और केस में कह दिया कि बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक्स ना दी जाए, बच्चे वन व्हीलिंग करेंगे। मरियम नवाज का कहना था जब बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम दिए गए तब अदालत हरकत में क्यों नहीं आई। अदालत अवामी फलाह के मंसूबों को रोक कर अरबों रुपए का नुकसान करती है। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ना वो स्कीम रोक दी बाइक्स वाली, कि जब पेट्रोल बॉम्ब्स बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं, जब बच्चों को अपने जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमले की तरगीब दी जाती है, उस वक्त कोई कोर्ट हरकत में नहीं आता। पब्लिक वेलफेयर के जो मंसूबे हैं उनको रोकना, सिर्फ इसलिए रोकना कि उसमें कोई सियासी इंटेंशंस हों, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद कहना था कि 5 साल हुकूमत करने के बाद भी कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। मुस्लिम लीग नून बच्चों के हाथों में गुलेल और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना नहीं सिखाती, बल्कि टेक्निकल हुनर देती है। आपको बताएं कि अवामी रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत का नान रोटी की नई कीमतों का तयन है। रोटी 15 रुपए की सरकारी कीमत में दस्तियाब है, लेकिन नान 20 के बजाय 25 रुपए में बेचा जा रहा है। शहरियों ने सरकारी कीमत पर नान की दस्तियाबी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे साहिद आमिर।
नान रोटी की कम कीमत में दस्तयाबी के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात जारी हैं। लाहौर में रोटी 15 रुपए और नान की नई कीमत 20 रुपए का इजरा हो चुका है। अक्सर मकामात पर रोटी तो नए मुकर्ररा निर्ख पर दस्तयाब है, मगर नान की फरोख्त में मनमानियाँ जारी हैं। अक्सर मकामात पर सादा नान 20 की बजाय 25 रुपए में, जबकि कुलचा 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अवाम कहते हैं रेट जारी किए हैं तो अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। जितने भी तंदूर हैं यहाँ पे चले जाए, ये अब्दुल करीम रोड पे तकरीबन 10 तंदूर हैं, आप चले जाएं और नान 30 रुपए का बेचते हैं। क्या बोलते हैं, इस पे धनिया लगा दिया है, धनिया के चक्कर में धनिया है 1000 रुपए किलो नहीं है। रोटी जो है वो तो कोई 15 रुपए की 16 रुपए की दे रहा है, लेकिन जो नान वाले हैं ना, नानों वाले उन्हें हिसाब लगाया हुआ है 25 रुपए का, 30 रुपए का अभी भी रेट चल रहा है, जो कि हुकूमत ने 20 रुपए रेट किया था। शहरियों का मजीद कहना है कि वाफर गंदम के बावजूद नान रोटी की कम कीमत का मुस्तहकम न होना बाइस तशवीश है। हुकूमत और इंतजामिया फौरी नोटिस लें। कैमरामैन जोहेब के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और ख़बर ये है कि तलबा में मोटरसाइकिलें तकसीम करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को माहौलियाती पॉलिसी 17 मई तक जमा करवाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि अदालत को हुकूमती पॉलिसी मामलात में मुदाखलत का शौक नहीं है, जबकि अदालत ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर वज़रा को बयान देने से रोक दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने समूह के तदारक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अदालत में पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि स्मोग और माहौलियाती आलूदगी पहले ही बहुत बढ़ी हुई है। हुकूमत को इलेक्ट्रिक बसों को फरोग देना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजेस को बसें फराहम करने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा। अदालत ने सूबाई वज़ीर इत्तलात के बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि स्मोग के मामले में हुकूमत एहतियात से काम ले। वज़ीर इत्तलात ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि वो क्या कह रही हैं। वज़रा के पास और भी बोलने को बहुत कुछ है। हुकूमत के करने वाले काम अदालतें कर रही हैं। हुकूमत अपनी तरजीहात तब्दील करे। जितना खर्चा शहर में लाइट्स लगाने पर किया, दरख्त लगाए होते तो माहौलियाती आलूदगी में कमी होती। एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि आइंदा कोई वजीर अदालती फैसलों के हवाले से बयान जारी नहीं करेगा। अदालत के अहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। इस हवाले से तहरीरी जवाब जमा करवाना चाहता हूँ। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। हड़ताल के बावजूद पंजाब की मातहत अदलिया को फराइज जारी रखने का हुक्म दिया गया है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का मरासले में कहना है कि ऐसी तमाम हड़तालों को नज़रअंदाज करें और ऐसे किसी भी काम से बाज रहें जो अदालती काम में खलल डाले। ये रिपोर्ट देखें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को हड़ताल के बावजूद काम जारी रखने के लिए मरासला अरसाल कर दिया गया। मरासले में लिखा गया है कि हड़ताल के रोज नए केसेस की दायरी नहीं रुकनी चाहिए। पंजाब की मातहत अदलिया वकला की गैर हाजिरी के बावजूद न सिर्फ नए मुकदमात को सुने बल्कि उन पर फैसले भी जारी करे। जुडिशल अफसरान इस मुल्क के गरीब सालीन को इंसाफ फराहम करने की अपनी मुकद्दस ड्यूटी जारी रखे। हमें बगैर किसी बैरूनी दबाव या असरो रसूख के सामने झुके कानून पर सख्ती से अमल करना चाहिए। मरासले में कहा गया है कि तमाम अदालती कामों को कानून के मुताबिक किया जाए। हुकाम के इल्म में आया है कि बार अरकान हड़ताल के जरिए अदालती काम में खलल डाल रहे हैं। जिली अदलिया के मुलाजिम हड़ताल के पेश नजर अदालती काम को बंद करके ऐसी किसी हड़ताल का हिस्सा न बने। हमारा काम लोगों को इंसाफ फराहम करना है। ऐसा कोई काम जो इंसाफ की राह में रुकावट डाले ना कबूल है। आला अदलिया की जानिब से हड़तालों को गैर कानूनी करार देते हुए इसकी मजम्मत की गई है। 9 मई को चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने वकला की हड़ताल पर नाराजगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि वकला पर इतने भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे कि वो याद रखेंगे। हड़ताल के नाम पर किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरासले में यह भी कहा गया है कि कोई वकील अदालत में गैर हाजिरी पर यह नहीं कह सकता कि अगर वो अदालत में पेश होता तो बार कौंसिल ने उसके खिलाफ कार्रवाई करना थी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर के हर इलाके में बिला इम्तियाज डेवलपमेंट करवाई जाए, कोई हिस्सा महरूम न रहे, शहर की कोई गली कच्ची न रहे और पानी के निकास का पायादार निज़ाम भी वज़ा किया जाए। वासा, MCL और दीगर मुतल्लिक़ इदारे मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़र सदारत लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। ड्रेन सिस्टम और सीवरेज सिस्टम जबकि गलियों की मुरम्मत और बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुज़ाफ़ाती आबादियों में स्ट्रीट लाइट्स, पार्क एंड हॉर्टिकल्चर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज का कहना था कि किसी गली मोहल्ले में खड़े पानी से आवाम को होने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं। इदारे आवाम के मसाइल हल करने में कोताही न करें।
खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स सुहेब अहमद मलिक ने मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत बाद अज़ा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट का खुसूसी इजलास हुआ। सूबे भर में रोड्स की मुरम्मत और नई सड़कों की तमीर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में कहा गया कि पंजाब भर के 590 सड़कों की तामीर और बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। सूबे भर में 11,500 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत और बहाली का काम जारी है। रवां साल 590 सड़कों की मुरम्मत का मंसूबा मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया है। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद और सूबाई सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ भी मौजूद थे। खबर यह है कि LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में मट्टी चोरी होने का मामला सामने आया है। LDA ने सिटी हाउसिंग स्कीम में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला कर लिया है। स्कीम में आने वाले मुख्तलिफ मुस्तजात से रोजाना की बुनियाद पर मट्टी चोरी की वारदातें होने लगी। स्कीम के जना इकबाल सेक्टर में रात के अंधेरे में मट्टी चोरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। LDA ने दफ़ा 144 के नफाज के लिए डेप्यूटी कमिश्नर और महकमा दाखिला से रजू कर लिया है। मट्टी चोरी के वाक़यात को रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने की इस्तदा की गई।